प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। वेलकम। हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं भगवत गीता का, और आज हम 17वां श्लोक करेंगे। तो प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अविनाशी तो तद्विधि, अविनाशी 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 तु तु तद्विधि तद्विधि येन सर्वम् इदं ततम्, येन येन सर्वम् सर्वमिदं इदं ततम् ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य विनाशम् विनाशाय अव्ययस्यास्य अव्ययस्यास्य वाक्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। न न कश्चित् कश्चित् कर्तुम् कर्तुम् अर्हति। अर्हति। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? ट्रांसलेशन और परपट I can read. प्लीज पढ़िए। That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. Purport. This verse more clearly explains the real nature of the soul, which is spread all over the body. Anyone can understand what is spread all over the body. It is consciousness. Everyone is conscious of the pains and pleasures of the body in part or as a whole. This spreading of consciousness is limited within one's own body. The pains and pleasures of one body are unknown to another. Therefore, each and everybody is the embodiment of an individual soul, and the symptom of the soul's presence is perceived as individual consciousness. This soul is described as 1/10,000th part of the upper portion of the hair point in size. The Shvetashvatara Upanishad confirms this. मैं रीड कर देता हूँ ये। Hmm. बालग्र षट्भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा सविज्ञेया स चानन्त्याय कल्पते। When the upper point of hair is divided into 100 parts, and again each of such part is further divided into 100 parts, each such part is the measurement of the dimension of the spirit soul. Similarly, the same version is stated. Kesagrasata bhagasya satanasha sarmasamakaha jiva sakshma savaritpyo yama sankhyato hi chittakana. There are innumerable particles of spiritual atoms which are measured as 1/10,000th of the upper portion of the hair. Therefore, the individual particle of spiritual soul is a spiritual atom smaller than the material atoms, and such atoms are innumerable. This very small spirit spark is the basic spiritual spark is the basic principle of the material body, and the influence of such a spiritual spark is spread all over the body as the influence of the active principle of some medicine spreads through the body. This current of the spirit soul is felt all over the body as consciousness, and that is the proof of the presence of the soul. Any layman can understand that the material body minus consciousness is a dead body, and this consciousness cannot be revived in the body by any means of material administration. Therefore, consciousness is not due to any amount of material combination, but to the spirit soul. In the Mundaka Upanishad 319, the measurement of the atomic spirit soul is further explained. I can read. Isho, yeah, okay. ईशोऽनुरात्मा चेतसा विदितव्यो यस्मिन् प्राणा पञ्चधा संविवेशा प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। The soul is atomic in size and can be perceived by perfect intelligence. The atomic soul is floating in the five kinds of air: prana, apana, vyana, samana, and udana. It is situated within the heart and spreads its influence all over the body of embodied living entities. When the soul is purified from the contamination of the five kinds of material, air, its spiritual influence is exhibited.
The Hatha Yoga system is meant for controlling the 5 kinds of air, encircling the pure soul by different kinds of sitting postures, not for any material profit, but for liberation of the minute soul from the entanglement of the material atmosphere. So, the constitution of the atomic soul is admitted in all Vedic literatures, and it is also actually felt in the practical experience of any sane man. Sane man. Only the insane man can think of this atomic soul as all pervading Vishnu Tattva. The influence of the atomic soul can be spread all over a particular body. According to the Mundaka Upanishad, this atomic soul is situated in the heart of every living entity. And because the measurement of the atomic soul is beyond the power of appreciation of the material scientists, some of them assert foolishly that there is no soul. The individual atomic soul is definitely there in the heart, along with the super soul, and thus all the energies of bodily movement are emanating from this part of the body. The corpuscles which carry the oxygen from the lungs gather energy from the soul. When the soul passes away from this position, the activity of the blood generating fusion ceases. Medical science accepts the importance of the red corpuscles, but it cannot ascertain that the source of the energy is the soul. Medical science, however, does admit that the heart is the seat of all energies of the body. Such atomic particles of the spirit whole are compared to the sunshine molecules. In the sunshine, there are innumerable radiant molecules. Similarly, the fragmental parts of the Supreme Lord are atomic sparks of the rays of the Supreme Lord, called by the name Prabha, or superior energy. So, whether one follows Vedic knowledge or modern science, one cannot deny the existence of the spirit soul in the body and the science of soul in explicitly described in the Bhagavad Gita by the personality of Godhead himself. Hare Krishna. ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू, लॉन्ग परपट, अच्छा अच्छे से पढ़ा आपने, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे कृष्णा बोल क्या रहे हैं? आप कृष्णा कह रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी शरीर के अंदर परवेड कर रही है जो चीज, उसका विनाश नहीं हो सकता, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, और वो है आत्मा। तो पर्पट में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आत्मा जो है वो किसी शरीर में है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? कैसे पता लगेगा आपको किसी क्या चीज जीवित है क्या नहीं है जीवित? अगर एक वर्ड में आपको आंसर देना है तो कैसे आप देंगे? कॉन्शियसनेस। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। तो लिविंग एंटिटी जो है, जीवित जो है, लिविंग बीइंग्स, उनके अंदर कॉन्शियसनेस है, चाहे डोरमेंट फॉर्म में हो। जैसे प्लांट्स भी होते हैं तो उनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी डोरमेंट होती है लेकिन प्रेजेंट होती है, और एनिमल्स में थोड़ी और ज़्यादा क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिटली हमें दिखती है, और ह्यूमन बर्थ में और ज़्यादा क्लियर होती है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो है वो पूरे के पूरे शरीर में परवेड कर रही है, हालांकि सोल जो आत्मा है वो बहुत छोटी है, और उसका यहाँ पे डायमेंशंस भी दी हुई हैं कि कैसे उपनिषदों में और अलग अलग जगह श्लोक है कि एक बाल है, उसका जो टिप है बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट, अगर उसके आप 100 टुकड़े करें और उसमें से एक टुकड़ा लेके उसके भी 100 टुकड़े करें, तो वो जो छोटा सा पार्ट होगा वो होगा आत्मा का साइज। बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है कि बहुत ही छोटी होने के बावजूद वो इतने बड़े शरीर को कंट्रोल करती है, कॉन्शियसनेस पूरी परवेड करती है। और यही आत्मा जो है एक छोटी सी एंट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी है, बैक्टीरिया वगैरह में, और यही है जो बड़े बड़े हाथी या ब्लू व्हेल, जो कि इतने बड़े बड़े शरीर है जिनके, उनको भी कंट्रोल करती है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी शरीर के अंदर पेन प्लेजर ये सब हो रहा है, ये सब शरीर को पता चल जाता है क्योंकि कॉन्शियसनेस है उस पार्ट में। तो ये कॉन्शियसनेस की वजह से पूरे शरीर के बारे में आइडिया होता है। तो ये श्लोक कोट किए गए हैं जिसमें बताया गया साइज ऑफ सोल। फिर आगे बताया गया है कि
अगर कोई शरीर में आत्मा नहीं है तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बता सकता है कि वो मृत शरीर होगा, वो डेड बॉडी होगी अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है। और उसके बाद ये बताया गया कि ये जो आत्मा है, हमने पढ़ा था ना कि कैसे ये शरीर जो है वो पंच महाभूत के जैसे बना होता है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच का बना होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो वायु है वो सिर्फ एक छोटा मोटा क्या कहते हैं, जो हमारे को परसीव होता है, सिर्फ हम ले रहे हैं सांस अंदर बाहर, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। एक्चुअली ये वायु जो है आयुर्वेद में और वेद में अलग तरीके से बताते हैं कि कैसे प्राण वायु, अपान वायु, व्यान, समान, उदान, ये अलग अलग तरह की वायु होती हैं अंदर, जो शरीर के अच्छी तरीके से काम करने के लिए इनको बैलेंस में रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। और प्राण वायु जो है वो सोल के बिल्कुल करीब होती है। तो तभी हम कहते हैं ना, जब किसी की मृत्यु हो जाए, हिंदी में कहते हैं प्राण चले गए उनके, तो बेसिकली प्राण जो है प्राण वायु से चली आती है सोल बाहर। तो ये प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान जो हैं ये होते हैं, इनको अच्छे से बैलेंस करने के लिए अलग अलग तरीके के योगा पोस्चर्स, जैसे आसन, प्राणायाम, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं हठ योगा के माध्यम से, ताकि सब चीज़ें बैलेंस में हो जाए। तो आप देखेंगे योगा में या आयुर्वेद में ये सब टर्मिनोलॉजीज काफ़ी यूज़ होती हैं। तो ये सारी की सारी जो एयर्स हैं, इन सबको रेगुलेट करके, मन को बहुत शांत करके भगवान में लगाना होता है। तो हम देखते हैं कई सारे शास्त्रों में वर्णन आते हैं, जैसे ध्रुव महाराज का वर्णन आता है चौथे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के, कि कैसे उन्होंने इसको इस्तेमाल करा है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, और कैसे पूरी तरह से अपना ध्यान भगवान में लगाया, उसको समाधि कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा करते हैं। अभी आजकल हम जब देखते हैं कोई हठ योगा कर रहा है, तो वो उसका जनरली बेसिस यही होता है, उनका बेसिक मकसद यही होता है कि थोड़ा हेल्थ अच्छी हो जाए हमारी, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, थोड़ी बॉडी लीव हो जाए, थोड़ा मन शांत हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो जस्ट सुपरफिशियल बेनिफिट हैं। इसके डीप बेनिफिट हठ योगा का क्या था कि वो पूरी तरह से आपको कनेक्ट कर देते हैं सुप्रीम के साथ। तो वहाँ तक आज के कलयुग के माध्यम से, कलयुग में इसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत लंबी, और ऐसी जगह प्रैक्टिस चाहिए जहाँ बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, जैसे जंगल वगैरह में। तो वो कृष्णा बताएंगे अभी 6 चैप्टर में, और डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है कहने का, यहाँ पे कहने का ये पॉइंट है कि आत्मा जो है वो बहुत छोटी है, हृदय की जगह है, और अलग अलग वायु जो हैं उनको क्या कहते हैं, बैलेंस में करके हठ योगा के माध्यम से हम अपने मन को शांत करके भगवान में लगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस का जस्ट इंट्रोडक्शन है। फिर आगे बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये पूरे शरीर के बारे में तो कॉन्शियस है, लेकिन पूरी दुनिया के बारे में, पूरी सृष्टि के बारे में इसकी कॉन्शियसनेस ऐसी नहीं है जैसी भगवान की कॉन्शियसनेस है। जैसे विष्णु तत्व जो है, भगवान है, वो हर जगह विद्यमान है, लेकिन आत्मा जो है वो इस शरीर में सीमित है। कई लोग ऐसे भी समझ लेते हैं कि शायद ये हमारे जो शरीर की आत्मा है ये हर जगह है विद्यमान, लेकिन वो उचित नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके शरीर में क्या हो रहा है या किसी और के शरीर में क्या हो रहा है, लेकिन अपने शरीर का हमारा को आइडिया है। तो ये डिफरेंस है आत्मा और परमात्मा में। परमात्मा को हर एक के शरीर का ज्ञान है। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि हृदय में स्थित है जो आत्मा है, और वो इतनी छोटी है कि उसकी मेजरमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और जो पूरे शरीर जो चल रहा है, आपको पता ही है कि हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, हृदय। अगर हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा तो व्यक्ति जी नहीं सकता ज़्यादा देर तक। अगर आपका बाकी कोई ऑर्गन
कुछ टाइम नहीं काम कर रहा है, जैसे किडनी नहीं काम कर रही, तो कोई बात नहीं, डायलिसिस चालू कर देते। या फिर अगर मान लो आपका कोई ब्रेन का कोई पार्ट भी अगर काम नहीं कर रहा, तो किसी को लकवा मार जाता है या पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन अगर हार्ट नहीं काम कर रहा, तो फिर जीना ज़्यादा देर तक पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया तो वो बहुत सीरियस मैटर हो जाता है। तो वो जो सोल है, जो आत्मा है, वो हार्ट के एरिया में सिचुएटेड है, और वो एक्चुअली पूरी फंक्शनिंग को गवर्न कर रही है। और जैसे मान लो किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट होकर दूसरा हार्ट आ गया, तो क्या होता है? तो बेसिकली इसी तरीके से है, जैसे अगर मान लो आप अपने ऑफिस में बैठे हो और आपकी चेयर है। अब जब आपकी ऑफिस की कोई चेयर खराब हो जाए, आप रिप्लेस कर देते हो, दूसरी चेयर मंगवा के उस पर बैठ जाते हो। तो वही बात है यहाँ पे कि हार्ट ट्रांसप्लांट में जो आत्मा है वो तो वहीं रहती है, लेकिन उसकी सीट जो है वो रिप्लेस हो जाती है। लेकिन हार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और जिस तरीके से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है और अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, वो सारा का सारा हार्ट की पंपिंग की वजह से होता है। तो वो जो पंपिंग है, और इतनी इतनी प्रिसाइसली हर एक चेंज ऑफ सिचुएशन से हार्ट अपने आप को चेंज कर लेता है। जब उसको लगता है कि हाँ भाई मेरे को ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, तो वो बढ़ा देता है अपना रेट, अदरवाइज कम कर लेता है। जैसे जैसे करना है वैसे वैसे रेगुलेट करता है। मतलब इतनी सुंदर तरीके से भगवान ने ये रचना की है शरीर की, कि अगर कोई भी इसको अच्छे से पढ़ेगा तो वो वैसे ही भगवान के अंदर उसका विश्वास और ज़्यादा अडिग हो जाएगा। क्योंकि अगर इतनी ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट मशीनरी इंसान भी क्रिएट नहीं कर सकते जो भगवान ने करी है। बेस्ट से बेस्ट कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, लेकिन वो ऐसे ही इतनी इसका मुकाबला नहीं कर सकता जो भगवान ने करी। तो इस तरीके से शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ब्लड जा रहा है, और सारा कॉन्शियसनेस जो है वो स्प्रेड होती है सोल के प्रेजेंस की वजह से। और यहाँ पे प्रभुपाद बताया हार्ट इज द सीट ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ द बॉडी। तो हार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। और फिर लास्ट में प्रभुपाद कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे सूर्य से कई सारी किरणें आती हैं, उसी तरह से सूर्य सोर्स हो गए और एक किरणें हो गई, उसी तरह से हम भगवान के पार्ट और पार्सल हैं। भगवान जो हैं वो विभू हैं, हम अणु हैं, हम छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंटल बीइंग्स हैं। और यहाँ पे बताया गया उसको कॉल्ड द नेम प्रभा और सुपीरियर एनर्जी। हम भगवान की शक्ति हैं। ये आगे और क्लियर होगा भगवत गीता में। तो इस श्लोक में से यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे? कोई कुछ पूछना चाहेगा यहाँ पे, या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप जो अभी आपको? मैं थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रही थी, हाँ जी। साइंस का आर्टिकल, बट आई डिडंट सी एक्चुअली ऑन। बहुत फोन पे ऐसे देखते रहते हैं, तो मेरा हाँ। पर्सनल इंटरेस्ट का वजह से समथिंग लाइक दैट मस्ट हैव पॉप्ड अप। अच्छा। उसमें बोलता है कि साइंटिस्ट आर प्रूविंग दैट वी आर आवर बॉडी रन्स ऑन एनर्जी, वी आर एनर्जी सोर्स, and hence then the closing statement was that that energy source is the soul. So हाँ। it was very interesting, लेकिन वही था कि जब तक मैं सेव करती, because it is popping up, क्योंकि मैं अभी आई थिंक मैं गीता पढ़ रही हूँ या ऑनलाइन हूँ गीता से, तो मे बी माई इंटरेस्ट समथिंग दैट मैच माई इंटरेस्ट आ रहा है कि हाउ इज हाँ, साइंस करेक्ट। रिलेटेड। तो ये एक स्टेटमेंट मुझे बतानी थी, क्योंकि इट रियली टच्ड माई माइंड कि how soul is invisible, but so is energy invisible, and that is how the body is being run. So obviously that energy source is going to घूम फिर के वो वापस environment में चला जाएगा, which is what we are saying कि घूम फिर के soul वापस environment में चला जाता है। थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एक्चुअली अगर आप सारी चीज़ें भी देखो, सारे एलिमेंट्स भी अगर आप कंबाइन कर लो, और एक ह्यूमन बॉडी या एक सेल या एक एग के जैसा कुछ बनाओ भी आप, तो भी आप उसके अंदर जब तक कॉन्शियसनेस नहीं आएगी ना, इट वॉन्ट एक्चुअली बी फंक्शनल। जिस तरीके से कॉन्शियस हैं लिविंग एंटिटीज,
उस तरह की कॉन्शियस चीजें पूरे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में क्रिएट करना साइंटिस्ट कर नहीं पाए कभी, क्योंकि यू नीड द सोल। Yeah. अदरवाइज आप सोचो कि एक डेड बॉडी है, अब डेड बॉडी को लाइव कभी कोई कर नहीं पाया साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा, क्योंकि एक बारी सोल चली गई तो फिर उसको ला नहीं सकते। आप तब तक कुछ भी कर सकते हैं जब तक बॉडी अलाइव है, या जब तक उसके कुछ क्षण बचे हैं, ठीक है, आप फिर भी मेडिकल टेक्नोलॉजीज वगैरह के थ्रू उसको ला। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी डेड है काफी टाइम से, और अब आप कहो कि हाँ भाई इसको लेके आओ, तो वो कर नहीं सकते, उसमें आत्मा को ला नहीं सकते। हालांकि सारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वही है, एलिमेंट्स वही हैं जो उसके अंदर थे पहले, केमिकल एलिमेंट्स देख लो आप, सब कुछ। तो इसलिए इससे कंक्लूजन ये निकलनी चाहिए कि ये जो केमिकल्स हैं उससे लिविंग एंटिटीज नहीं बन सकती। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ डजंट कम फ्रॉम केमिकल्स, है ना। Yeah. इवन अगर आप देखो कई बार साइंटिफिक रिसर्च में क्लोनिंग कराई जाती है, लेकिन क्लोनिंग में भी वो केमिकल से नहीं करते, वो लेते लिविंग एंटिटीज के ही सेल्स हैं और उसी से क्लोन बनाते। ओके, और किसी का कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहेगा? I have a question, Prabhuji. हाँ जी, बताइए माता। Maybe scientific question, not related to so much related to this shloka, but जैसे वो for any lady when a बच्चा is conceived, a baby is conceived, तो जब हार्ट बीट शुरू हो जाता है, that means the आत्मा is in there. हाँ, एब्सोल्युटली। एक्चुअली आत्मा कब आती है सोल में, सॉरी वूम में? वो हार्ट के पहले भी आ जाती है। एक्चुअली एवरी सेल इफ यू सी हैज इज लिविंग। साइंस अगर आप देखोगे, साइंस क्या कहती है, हर सेल जो है लिविंग है। उसी तरह से जब अंदर बेबी बॉर्न हो रहा है वूम के अंदर, तो बेबी एज सून एज the zygote is formed and the embryo is formed, it is actually having a soul. ठीक है ना? Thank you. Yes. और किसी का कोई पॉइंट? ओके, we'll go next. Please repeat. अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा, नित्य शोक्ता शरीरिना, नित्यशोक्ता शरीरिणा अनासिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत, तस्माद्युध्यस्व भारत। कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पोपट? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। हाँ हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharata. Purport. The material body is perishable by nature. It may perish immediately or it may do so after 100 years. It is a question of time only. There is no chance of maintaining it indefinitely. But the spirit soul is so minute that it cannot be even seen by an enemy, or say nothing of being killed. As mentioned in the previous verse, it is so small that no one can have any idea how to measure its dimension. So, from both viewpoints, there is no cause of limitation because the living entity as he is cannot be killed, nor can the material body be saved for any length of time or permanently protected. The minute particle of the whole spirit acquires the material body according to his work, and therefore observance of religious principle should be utilized. In the Vedanta Sutra, the living entity is qualified as light because he is part and parcel of the supreme light. As sunlight maintains the entire universe, so the light of the soul maintains the material body.
As soon as the spirit soul is out of the material body, the body begins to decompose. Therefore, it is the spirit soul which maintains the body. The body itself is unimportant. Arjuna was advised to fight and not sacrifice the cause of religion for material, bodily consideration. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो जो शरीर है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं होती। आत्मा को मेजर भी नहीं कर सकते, और आत्मा का ना कोई बिगिनिंग है ना एंड है। कभी ऐसा नहीं कि आत्मा की उत्पत्ति होती है और आत्मा नष्ट हो जाती, नहीं। आत्मा जो है सनातन है, वो चलती रहती है, वो इटर्नल है, उसका कोई एंड नहीं है। तो इसलिए आप अपनी ड्यूटी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे विचलित मत हो। आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करो। अगर आप सोच रहे हो कि भीष्मा द्रोणा ये सब मर जाएंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो इसलिए आप अपनी ड्यूटीज से बिल्कुल पीछे मत हटो। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि शरीर जो है उसका तो अंत हो जाएगा, या तो कई केसेस में ऐसे होता है कि बड़ी जल्दी अंत हो जाता है। जैसे कई जानवर हम देखते हैं, इंसेक्ट्स छोटे छोटे होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, वो एक ही दिन में, एक दो दिन से ज़्यादा नहीं जीते, वही उनकी उसी में वो बड़े भी हो जाते हैं, पैदा होके बड़े हो जाते हैं, उनकी भी शादियाँ हो जाती हैं, वो भी बच्चे हो जाते हैं, सब कुछ, और फिर मृत्यु भी हो जाती है। और कई ऐसे होते हैं प्राणी जो कई कई सैकड़ों सालों तक जीते हैं, जैसे टॉर्टोइज हो गया, या ह्यूमंस भी हो गए, या फिर कई पेड़ पौधे, कई ऐसे पेड़ हैं जो हजारों हजारों साल तक जीते हैं। तो अलग अलग शरीर जो है उसका लाइफ अलग अलग है, अलग अलग एक्सपायरी डेट है उनकी, लेकिन हमेशा कोई जीवित नहीं रहता, मृत्यु तो होनी है। और जो आत्मा है वो बहुत माइन्यूट है, उसको, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, और उसको कोई मार नहीं सकता, उसका कभी एंड नहीं होता। तो इसलिए इस चक्कर में कि आप शरीर को बचा के रखो किसी और के, और अपनी ड्यूटीज ना करो, ये कोई उचित कार्य नहीं है। आपको अपनी ड्यूटीज करनी है इमटीरियल ऑफ द फैक्ट कि क्या उसका आउटकम हो। आपकी ड्यूटी है कि आपको अच्छे से युद्ध करना है, ये गोल बना के कि आपको जीतना है, लेकिन आपके हाथ में नहीं है जीत और हार, आपके हाथ में नहीं है किसी को बचा पाना या मारना। आपका ये है कि आपको जो जस्टिस है, जो सही है वो करना है। आप राजा हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म होता है क्षत्रायते इति क्षत्रिया, मतलब कि जो प्रोटेक्ट करना सोसाइटी को, सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, जो कल्चर है, जो धर्म है, उसको प्रोटेक्ट करना। अगर धर्म को आप प्रोटेक्ट करने के लिए युद्ध करना पड़े आपको अपनों से ही, तो वो युद्ध करना पड़ेगा आपको, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। तो रिलीजियस प्रिंसिपल्स को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए जो करना है, उसके लिए एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो आगे बढ़ के युद्ध करें अगर ज़रूरत है तो। और यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं वेदांत सूत्रों में लिखा है, इन द वेदांत सूत्र, लिविंग एंटिटी इज क्वालिफाइड एज लाइट बिकॉज ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लाइट। तो वेदांत सूत्र में एक लाइट के माध्यम से ही बताया गया कि जैसे भगवान है, उनके अंश हैं हम, पार्ट एंड पार्सल। तो भगवान जो सुप्रीम लॉर्ड है, अगर हम उनको एक समझें कि वो सोर्स हैं, जैसे सन सोर्स है और सन रेज उनकी एमनेशंस हैं, उसी तरह से भगवान जो सोर्स हैं और जीवा जो हैं उनकी एमनेशंस हैं। तो वो लाइट का एग्जांपल यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं। सनलाइट मेंटेन्स द एंटायर यूनिवर्स, सो द लाइट फ्रॉम द सोल मेंटेन्स दिस मटीरियल बॉडी। तो सनलाइट जो है वो पूरे अलग अलग प्लैनेट्स के अंदर सब कुछ चला रहा है। उसी तरह से जो आत्मा है, जो भगवान की एक अंश है, उससे सारी की सारी ये शरीर जो है मेंटेन हो रहा है, जो कि डेड है अपने में, लेकिन सोल के प्रेजेंस से इसके अंदर लाइफ है। और जब सोल चली जाएगी तो बॉडी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए हम देखते हैं अगर कभी किसी
शरीर में से आत्मा निकल गई है, तो फिर उनकी अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार किया जाता है अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से। या तो दफना दिया जाता है या उनको जला दिया जाता है। क्यों? वो तो इतने प्रिय थे, उनके प्रियजन थे कई सारे, उनके से दूर नहीं होते थे। लेकिन अभी जो एक्चुअल व्यक्ति थे जिनसे प्रेम था, वो व्यक्ति चले गए हैं और जो शरीर है वो रह गया। तो शरीर जो है उसकी अपने में इतनी वैल्यू नहीं है, जब आत्मा है तब बहुत वैल्यू है। हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च के किसी का इलाज कराते हैं, बचाने के लिए कुछ भी करते हैं लेकिन अगर आत्मा चली गई है तो फिर अब उसकी वो वैल्यू नहीं रही जो पहले थी। ठीक है ना? तो ये इस पर्टिकुलर श्लोक में से कुछ पॉइंट्स हैं। आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा इस पर्टिकुलर श्लोक में? कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट जो भी पर्टिनेंट हो हमारे डिस्कशन के लिए? ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ये लास्ट श्लोक करेंगे आज का। य एनं वेति हन्तारं, य य एनं एनं वेति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतं, यश्चैनं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते हन्ते। कोई पढ़ सकता है ट्रांसलेशन और पॉपट इसका? यस, मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, पढ़िए जी। When an embodied living entity is hurt by fatal weapons, it is to be known that the living entity within a body हरे is. कृष्णा, सॉरी टू इंटरप्ट। आप ये ऊपर वाला भी पढ़ देंगे एक बारी? Sorry, मैंने ऊपर. Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it slain is in knowledge for the slays, not nor is slain. When an embodied living entity is hurt by fatal weapons, it is to be known that the living entity within the body is not killed. The spirit soul is so small that it is impossible to kill him by any material weapons, as will be evident from subsequent verses. Nor is the living entity killable because of his spiritual constitutions. What is killed or is supposed to be killed is the body only. This, however, does not at all encourage killing of the body. The Vedic injunction is ma himsat sarva bhutani, never commit violence to anyone, nor does understanding that the living entity is not killed encourage animal slaughter. Killing the body of anyone without authority is abominable and is punishable by the law of the state as well as by the law of the Lord. Arjuna, however, is being engaged in killing for the principle of religion and not whimsically. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे? कृष्णा बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो सोचता है कि जीव हत्यारा है, या वो व्यक्ति जो सोचता है कि जीव की हत्या हो गई है, ये दोनों लोग जो हैं ये नॉलेज में नहीं है। अब कृष्णा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कृष्णा ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन अगर अपना धर्म निभाने के लिए, धर्म के लिए युद्ध करते हैं और उस युद्ध में अर्जुन के द्वारा नेचुरली कई सारे दुश्मन आर्मी के लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें कृष्ण ये समझा रहे हैं कि जब युद्ध करने के लिए आप ये चीज कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि जीव की हत्या हो गई, एक्चुअली जीव तो जो प्राणी है, जो सोल है, जो आत्मा है, वो तो अमर है। तो इसलिए ये इंटेलिजेंस नहीं है। अब प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आत्मा है, अभी आएगा आगे, कृष्णा भी समझाएंगे इस चीज को, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा जो है उसको कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जो मार सके, क्योंकि कभी मरती ही नहीं आत्मा। और
अलग अलग सिचुएशन में जब शरीर को कुछ होता है तो शरीर से आत्मा निकल सकती है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। लेकिन वैदिक कल्चर में हम हिंसा मिनिमाइज करते हैं, हिंसा नहीं करते। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, नेवर कमिट वायलेंस टू एनीवन। किसी को भी अपनी मर्जी के लिए, अपने मन के लिए किसी को दुख नहीं पहुंचाए, एक्सप्लॉइट ना करें। जैसे कई लोग कह सकते हैं कि अरे अगर मेरे मारने से आत्मा तो मर नहीं रही तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मार सकता हूँ लोगों को, मैं मार सकता हूँ जानवरों को, जानवरों के शरीर से मैं अपनी जो भी चीज़ें मेरे को चाहिए वो बना सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ मांस वगैरह, ऐसे सब बोल सकते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए सिर्फ मारने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि वो धर्म के बचाने के लिए था। अगर हम धर्म के बचाने के लिए नहीं करेंगे और अपने मनमर्जी से लोगों को मारने लग जाएंगे तो ये उचित नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए एक कोई आर्मी में है व्यक्ति, वो आर्मी में जाता है, युद्ध करता है दूसरी पार्टी से, और बॉर्डर में वो 100 लोगों को मारता है, और 100 लोगों को मारने के बाद जब वो आता है वापस, तो उसको सरकार मेडल देती है कि आपने 100-200 के बीच में आप घुस गए और वहां पे आपने इतने लोगों को मारा और अपने देश के ये बचाया, तो आपको ये मेडल। और अगर वही व्यक्ति अपने नेबर में जाके, पड़ोसी को वहां जाके किसी तरह लड़ाई हो गई पार्किंग के चक्कर में या किसी चक्कर में उसके, और उसने पकड़ के उसको धून दिया, मार दिया, और मान लो वो मर गया या मरा भी नहीं, अगर उसको चोट लग गई तो पुलिस केस हो जाएगा उसके ऊपर। और अगर मार दिया उसने तो पुलिस जेल में डाल देगी उसे। तो कहेगा ले ये क्या, मैंने 100 लोगों को वहां मारा, आपने मुझे मेडल दिया, यहाँ एक को मारा आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। तो कहेगा हाँ, 100 लोगों को तुमने जब मारा तो वो मेरे आदेश से मारा, वो तब मारा जब सरकार को जरूरत थी, जब देश को जरूरत थी। लेकिन यहाँ तुमने अपनी मन मर्जी से किसी को मार दिया, इसमें कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें आपको बल्कि पनिशमेंट मिलेगी। उसी तरीके से अर्जुन अगर भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए करता है या शास्त्रों के अनुकूल जब वो करता है तो युद्ध, तो वो चीज से अर्जुन को कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि एक्चुअली उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो अपनी मन मर्जी से लोगों को करने लग जाता है तंग, जैसे दुर्योधन ने कर रहा था, दुर्योधन लोगों को भीमा को वो पॉइजन दे के मार रहा था, या फिर पांडवों को जला रहा था, या फिर द्रौपदी के वस्त्र हरण कर रहा था। ये सारी चीजें उचित नहीं है, ऐसे आप नहीं कर सकते, ये सारी वॉयलेंस है। तो इसी तरह इसीलिए दुर्योधन जो है उसको अपने कर्मों की सजा मिलनी थी और उसको जस्टिस देना बहुत जरूरी था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बताया जा रहा है अर्जुन हाउएवर वाज बीइंग engaged in killing for the principle of religion and not whimsically, अपने मकसद के लिए नहीं मगर धर्म के रक्षा के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ये सब क्लियर हो रहा है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक जो हमने डिस्कस किया आज? क्योंकि आई थिंक ये 3 श्लोक ही आज कर पाएंगे अब हम। नेक्स्ट श्लोक थोड़ा लंबा है तो उसको हम नेक्स्ट वीक करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो अभी हम सवाल जवाब में चर्चा कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्टॉप करते हैं आज के लिए। कोई आप लोगों में से किसी का कोई फीडबैक हो जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें कोई चेंज, कोई स्पीड बढ़ानी हो, कम करनी हो, या कोई और आप लोगों को लगा ऐसी चीज जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं आने वाले वीक्स में? मेरा एक कहना था कि जो हम वीडियो से करते कांट भी आप वापस उसको डाल सकते हैं ताकि वी कैन लिसन इट, हम लोग एक और बार उनको सुन सके थोड़ा और हाँ भी लाइक। तो हाँ, ये मेरे मैंने लास्ट यस, वीक का एक वीडियो बचा है, बाकी सारे मैंने वीडियो वैसे अपलोड किए हैं। मैं इस वीकेंड का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा आज या एक्चुअली में कल। मैंने थोड़ा 2 क्लासेस मिस किया, तो अगर आप वो फर्स्ट 2 भी डाल देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं शुरू से कर सकती हूँ। मैंने और 2 दैट वुड बी ग्रेट। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अलग से। श्योर, थैंक यू। आप आपका ग्रुप में है ना नाम? हाँ, हाँ, नाम है, लेकिन मैं थोड़ा मुझे जिसने उन्हें इंट्रोड्यूस किया है ग्रुप पे वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुका था, तो मैंने 2 मिस किया है, 2। नो प्रॉब्लम, मैं ग्रुप में ही डालता हूँ। आप भगवत गीता सेशंस वो वाले में हैं आप?
यस, मैं उसमें ही हूँ। मैं आपको उसमें ऐड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू, पार्टिसिपेटिंग एंड रीडिंग। थैंक यू। तो हम यही हरे स्टॉप कृष्णा करते हैं। प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैं एक्चुअली सैटरडे क्लासेस अटेंड करती हूँ अच्छा, नॉर्मली। कल अटेंड नहीं किया, शायद कल था नहीं। पर उससे कल था, पहले कल कल था। एक्चुअली मैंने डाला था, मेरा व्हाट्सएप ना कल किसी तरीके से हाँ। हैक हो गया, तो पहले उसके बाद मेरे से मैसेज ही नहीं जाया जा रहा था। तो मैं ओके। मैं कल वाला शेयर कर दूंगा आपको सर। हाँ जी, ठीक है। तो फिर मैंने आज का इसलिए अटेंड कर लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं सैटरडे कर नहीं पाई। बट आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ श्लोकास दैट वी आर रीडिंग। नहीं, अभी सेम है, सेकंड अभी चैप्टर में अभी सेम सेम है। कर रहा है। ओके। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा डिफरेंस था, सेकंड चैप्टर में भी सेम कर दिया हमने, क्योंकि प्रभु कई जी बार क्या होता एक्चुअली है एक उस पर्टिकुलर क्लास में जैसे ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो फिर हम हम्म वो आगे नहीं बढ़ पाए थे। फर्स्ट चैप्टर में ऐसे हुआ था, बट अभी हमने इक्वल कर दिया। बट उसके पहले के 2 क्लासेस भी मैंने मिस किए हैं, तो अगर आप उसमें भी अगर पोस्ट कर सकते हो हाँ, उसका मैं भी। सारे एक्चुअली शेयर करना चाह रहा था। सॉरी, आपका कट ऑफ हो गया पूरा। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं क्लीन अप करके ना जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारे डाल दूंगा, क्योंकि आई थिंक कई प्लेलिस्ट के अंदर ऐड नहीं हुए थे, तो दैट वे यू विल हैव द होल थिंग। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा।